السلام علیکم ناظرین رات 9 بجے تو خبر نامہ ہیت ساحل امین تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل سری نگرس مز آز بی ایس ایف طرف پیڈل فار ایک بھارت شریشٹھ بھارت پروگرامس حوالہ تقریب ہند سانز کرنا آمت یت مز ایل جی منوج سنہا تو بی ایس ایف ذمہ دارو علاوہ اہلکارو تو سائیکلسٹ شرکت کر ات موقع پہ یہ 69 سائیکلسٹن ہز حوصلہ افزائی کرنا آئی تتہ ایل جی منوج سنہا وونمت پہلگام واقع پیش ین پتہ آپریشن سندور عمل مز انت پاکستانس مز موجود دہشت گردن معقول جواب دن آمت یل زن تمو وون بی ایس ایف طرف ملک سلامتی تو امن امان باپت خدمات انجام دن یم زن سٹھائی تھکن لائق چھ. میں دیش کی پرتھم رکشا پکتی بی ایس ایف کا بھی ابھینندن کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس آیوجن دوارا سیما پرہریوں پولیس آرمڈ فورسز ارد سینک بلوں تتھا کشمیر کے سامانیہ یوا اور نواسیوں کو میں بدھائی دیتا ہوں. مجھے لگتا ہے ان بہادر جوانوں اور افسروں کو شردھانجلی دینے کا کام بھی یہ سائیکل یاترا کر رہی ہے جنہوں نے راشٹر کی ایکتا اور اکھنڈتا قائم رکھنے کے لیے ادبھت پراکرم شوریہ اور بلیدان کا پریچے دیا ہے. آج اس اوسر پر میں پہلگام میں شہید ہوئے 26 شہید ناگرکوں کو بھی شردھانجلی ارپت کروں گا. سبھی جوانوں تتھا جموں کشمیر کے یواؤں سے کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی وہ بربرتا ہم کبھی بھول نہیں سکتے. ہمارے سرکشا بلوں نے آپریشن سندور آپریشن مہادیو کے دوارا پاکستان کی آتنکوادی حرکت کا بدلہ لیا ہے، لیکن بھوشیہ میں بھی ہر ایک جوان اور ہر ایک نوجوان کو تیار رہنا ہوگا. آتنکوادی ملک پاکستان ہمارے ناگرکوں کا اگر خون بہاتا ہے تو اسے اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے. اس کا پربند کانگریس پارٹی طرف آز جمس مز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاجس مز شامل پارٹی لیڈرو تو ورکر مرکزی سرکارس خلاف سخت نعرہ بازی کران. احتجاجس مز شامل پارٹی لیڈرو تو ورکرو طرف ون آمت یہ جموں کشمیر ہند ریاستی درجہ بحال کرنس حوالہ مرکزی سرکار طرف وعدہ کرنا آمت تاہم آز تام یہ وعدہ پور کرنا آمت تو احتجاجس مز شامل لیڈرو طرف مرکزی سرکارس مانگ کرنا آمت جموں کشمیر ہند ریاستی درجہ بحال کرنس حوالہ گھن قدم تلن ین یت زن تم دوبارہ سڑکن پہ ینس مجبور سپدن. ضلع سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں. آج دیکھو چاہے بارش کا بول تھا پھر بھی کٹھوا ڈسٹرکٹ سے سارے پرومیننٹ ہمارے پارٹی کے لیڈر وہ سب کٹھوا سے چل کے یہاں پہ آئے ہیں. جو ہماری مہم چھوڑی تھی خراج صاحب نے ہماری ریاست ہمارا حق، اور اس جموں چلو سری نگر چلو دلی چلو جنتر منتر کے بعد یہ فیس تھا. انگر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں دلی، پہلے دن جموں اربن اور رورل بیٹھا تھا، کل ادھم پور سے لوگ آئے تھے، آج کٹھوا سے آئے ہیں. جتنے ہمارے فارمر منسٹر ایکس ایم پی سب اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں اس آواز کو اٹھانے کے لیے کہ ہمیں ریاست کا درجہ فوری طور پہ ریسٹور کیا جائے. لوگوں کی دیکھتے ہیں سمادھان کو لالی پاپ لپ سروس دیتے ہیں کہ ایٹ اپروپریٹ ٹائم دیں گے. وہ ایٹ اپروپریٹ ٹائم کا مطلب کیا ہے؟ جموں کشمیر کا عوام پستا چلا جا رہا ہے. اس لیے کانگریس نے خراج صاحب کی لیڈرشپ میں فیصلہ کیا ہم سڑکوں کی لڑائی لڑیں گے تاکہ اس کے بعد دلی صدر تک گونج سنائی دے اور ہمارا نیترتو. کرمشہر بڈگامس مز یہ فروٹ منڈی تعمیر کرنس حوالہ کام جاری تتہ آز اسمبلی سپیکر عبدالرحیم راتھرن منڈی مز تارکول وہراونچ کامہ افتتاح کورمت. یتھ دوران ممبر اسمبلی خان صاحب سیف الدین بٹ تو انتظامیہ دویم ذمہ دار تہ موجود ٲسۍ. یل زن عبدالرحیم راتھرن وون یہ منڈی قائم کرنے ست واتہ ضلع بڈگامس ست تعلق تھون والن لوکن سٹھائی راحت تو فائدہ.
बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब उनको मार्केट अपने घर में मिलेगा, अब इनको दूर नहीं लेना अपना प्रोड्यूस। अपने घर में ये फैसिलिटीज जब मिलती हैं, ये तो बहुत बड़ी बात होती है। कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई खर्चा नहीं बढ़ेगा। यहाँ से अगर दूर मंडियों में इनको जाना पड़ता था तो एक तो वक्त जाया हो जाता था, दूसरा ये कि उस पर खर्चा भी आता था ना, जाने के लिए, आने के लिए। अब घर में एक फ्रूट मंडी बनी है, ये तो बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस बल्कि जितनी भी अपोजिशन पार्टीज मुल्क में हैं, सब स्टेटहुड के लिए काम कर रहे हैं और हर एक अपने तरीके से काम करता है। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हमें इस सिलसिले में मदद कर रही हैं, रियासत के लोगों की मदद कर रही हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। आपने देखा पार्लियामेंट में भी जो मुख्तलिफ पार्टीज हैं, अपोजिशन पार्टीज हैं, वो सब मिल के इस मकसद के लिए काम कर रहे हैं। उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि दुनिया उम्मीद पर कायम है। मुझे उम्मीद है कि ये मसला जो है ये जल्दी हल हो जाएगा। अब गवर्नर साहब का अपना ख्याल है, उनको अगर पूरी तरह हिस्ट्री मालूम होती शोहदा की, वो इस किस्म की बात ही नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मंडी जो इस वक्त यहाँ पे है, हमारे राष्ट्र साहब स्पीकर साहब के जरिए से और मेरे जरिए से इसकी जो इनाग्रेशन हो गई है, तो ये एक इस इलाके के लिए सिर्फ ये चार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी को ही नहीं फायदा होगा, ये बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, ये तीन कॉन्स्टिट्यूंसी लोगों को फायदा इससे पहुंचेगा। जो कि इनको पहले फ्रूट लेना पड़ता था शिपियन के कोल्ड स्टोरेज में और मंडियों में लेना पड़ता था, श्रीनगर फ्रूट मंडी में कैरेज लगती थी, मेवा सड़ता था। तो ये तो यहाँ पे आगे पीछे दाएं बाएं इतने बागात हैं, ये सेंट्रली लोकेटेड है। पारनुआ क्रमशेर में जो ये है जमीन, पारनुआ का भी क्रमशेर का भी, तो हमें इस मंडी का अंदाजा नहीं है कि इन लोगों को डायरेक्ट फायदा कितना पहुंचेगा। ये अल्लाह का करना होता है, फिर हमारी रासर साहब की मेरी कोशिशों की वजह से ये फ्रूट मंडी बन गई इंशाल्लाह। गर्ल्स मिडल स्कूल बनीगाम कलगमस मज आज महकमे तालीम तो कैंसो रजाकार तंजीमों तरफ जिस्मानी तौर खास बच्चन हिंद बापत प्रोग्राम सांझ करना आमुत यथ मज मेंबर असम्बली कुलगोम मोहम्मद यूसुफ तारिक तालीमी जिम्मेदारों तलब इल्मो तो वालदेनो शिरकत कर। अत मौके पे ये जिस्मानी तौर खास बच्चन मज मसनूई आलात बगरन आय, तत मोहम्मद यूसुफ तारिक वोनमुत यम बच्चे समाजुक अहम हिस्सा तो अस पज यमन हुंद खास ख्याल थाव। बार बार ज़रूरत रहेगी हमारी इन बच्चों के बीच में यहाँ खड़ा होने के लिए, वक्त भी है और ज़रूरत भी है। और आज हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये तकरीब मुनक़्क़िद की यहाँ इस स्कूल में। हमारे CO साहब, जरियो साहिबान और हमारे साथ जो बाकी ज़िला के ज़िम्मेदार लोग हैं, DDC चेयरपर्सन, DDC मेंबरान और इनके पेरेंट्स जो हैं, बच्चों के पेरेंट्स, उनके साथ आज बातचीत का मौका मिला। और मेरा ये मानना है क्या, जहाँ तक इस कम्युनिटी ऑफ जो ये सेक्शन जो है हमारी सोसाइटी का, जिन्हें हम स्पेशली एबल्ड कहिए, डिसेबल्ड कहिए, जो भी आप नाम दे पाए मुनासिब समझे, लेकिन ये ज़्यादा असिस्टेंस के, ज़्यादा गाइडेंस के, ज़्यादा मावनत के हकदार हैं। सोसाइटी की तरफ से इनको मावनत मिलनी चाहिए, जो हमारी नज़र में अभी बड़ी स्कीमें बनी हैं, नो डाउट अबाउट दैट। और लेकिन अभी उन स्कीमों का भी जो इतलाक है वो बड़े पैमाने पर शायद हुआ नहीं, उसमें भी कमियां हैं। लेकिन इसके अलावा कई और चीज़ें भी हैं जो करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर आज हम चूँकि इस एजुकेशन सेंटर में यहाँ जमा हुए हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट की दावत पर ही ये एहतमाम हुआ है इस तंजीम आज के इस मजलिस का, तो मैं ये कहूँगा कि तालीमी हमारे निज़ाम का एक कलीदी रोल है इन बच्चों और बच्चियों को बाख्तियार बनाने की
जदोजहद में, और इनको बाइख्तियार बनाने के लिए न सिर्फ ये कि इनकी मदद हो, मदद तो लाजिमी है, जो भी दरकार है मावनत सरकार की तरफ से वो अभी कम है हमारी नज़र में, और उसको बढ़ाना चाहिए। कई स्कीमें हैं, दो बातें हैं इसमें। एक, कई स्कीमें हैं जिनको आज से नाउ उनको जायज़ा लेना है ताकि उनको ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, और साथ ही साथ जो स्कीमें बनी भी है उनका फ़ायदा सभी स्कीमों का ग्राउंड लेवल पर मुस्तहिक बच्चों को पूरा मिलता नहीं है, उसका भी जायज़ा लिया जाना चाहिए। वो हमारी लेजिस्लेचर का काम है, सरकार का काम है, और फिर जो हमारे इसके साथ ताल्लुक़ रखने वाले सोसाइटी के खास एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, इनका एक रोल बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि हम जायज़ा लेंगे, जो भी कमियां होंगी एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में चलेंगे ताकि ये कम्युनिटी भी ज़िंदगी के सफ़र में अपना मुकाम हासिल कर ले। और इस नाजरीन खबरनामस में तुहद दुबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। नरवारा श्रीनगरस में आज सूफी शायर अब्दुल अहद जरगर सुन दोह मनावन आमुत यथ मज रफीक राज तो खुर्शीद जरगर सलाव वादी हिंदो शायरों अदीबों कलमकारों गुलकारों तो आमलू को शिरकत कर अत मौके पे ये अब्दुल अहद जरगर सद कलाम पेश करना आई तत तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आमुत ये जन मुश्ताक बरक तो गुलजार अहमद गनायस अवार्ड ते दिन आमुत। जिले पुंछस मज ये पतमो कैचो दो पे लगातार रूद पेन सत मुकामी नालन तो कलन मज आबुक बहाव तेज सपदमुत तो इंतजामिया तरफ जिलस मज तलीमी इदारे बंद करने आमत तत आज जिले तरक्याती कमिश्नर पुंछ SSP पुंछ तो इंतजामी के जिम्मेदारों मुख्तलिफ इलाकन हूं दौर कोर्मुत यथ दौरान तमो सूरत हाल साम हेज ये जन जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आव तम गन नालन तो कलन नजदीक गसनस गुरेज करें युद्ध जन कह हादसे पेश यी। उस जगह से नुकसान की रिपोर्ट भी आ रही है जिसमें लैंडस्लाइड्स हुई हैं, स्कूल की कोई एक बिल्डिंग का शेड का कह रहे हैं डैमेज हुआ है, इसी तरह से डिफरेंट रोड्स पे लैंडस्लाइड्स हुई हैं। सभी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट किया गया है कि वो विजिलेंट रहें और किसी भी तरह का कोई इस तरह का वाक़या ना हो उसके लिए अलर्ट रहें। लोगों को भी हिदायत की जाती है कि वो पानी के पास ना जाएं और घरों में ही रहें। स्कूल बच्चों को जो है स्कूल में छुट्टी कर दी गई है आज की, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नज़र बनाए हुए है किसी भी इस तरह का कोई वाक़या हो। मैं आपके माध्यम से भी लोगों को कहना चाहूँगा कि पानी के पास ना आएँ, और आपके नोटिस में भी अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट आता है या कहीं पे कोई परेशानी होती है तो हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। ब्राज शांगस अनंतनाग के लोगों तरफ शिकायत बाहन वन आमद यदवई मकामी सड़कें खस्ता हली हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आय ताहम कह कदम तुलना आमुत यम किन मकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मकामी लूकों तरफ इंतजामिया मंग कर आमद सड़कें शहर पर हवाले गन कदम तुलन इन युद्ध जन आम लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। मसल मलगुजार खतर यप रोड यमिज मर्द मारान कह मारान बिचारन तमिज गसान तंगी। हमने गवर्नमेंट से बहुत बार अपील की यथ करियो रोड डेवलप। हमने परसों भी एक बाइट दी, अभी तक यहाँ का मसला कुछ नहीं हुआ। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं इसको डेवलप होना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम बहुत होती है यहाँ, हमारा रोड सब कुछ डैमेज है
क्योंकि ये हर किसी के लिए है, एक ही के लिए नहीं है, ये हर किसी गांव के लिए है। जब गांव वाले निकलेंगे डी साहब खुद एक्शन उठाएगा। शान अर्ज तो मेगडम त्रो ये गो 2002 पे सह लिस्ट तो सह कॉपी बनोमुत तो सह लिस्ट 2022 पे वोत लड़न होड़ योड़ योड़ होड़ कर वो दिता तमो सीरियल नंबर 12 तो 13 सोन ये मज 12 12 चुन अत कुन मुजर 13 चुक निमुत खुदा जान बेहतर यह कम न्यू ये क्या कोर ये बहस सीरियल बहस नंबर वो तुहद वसात अपील कर गुजारिश कर अस बोय ये हमसाय MLA साहब रियाज अहमद खान साहब अस कर तमिस तज गुजारिश कर हता सोन यह मसल कर तो हल अस गई ओतर तमिस दोन हे परवाह परवाह कह मेगडम यो टाइम यो अगस्त रेत सितंबर पे बे क्लोज त्रायना कि पत मा त्रायन दपन यथ सर्दी हूं मौसम वह हेकन नसा हेको त्रित कह तुम दियो पान ये नजर ये बनो होथस नाड़ उतर पे रुद छोल ये बनो नाड़ होथस ये बनान जनान महन ना अस बुड़न खास कर यह नौतवान। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टंगडारस मज आज एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम संज कर आमुत ये जिम्मेदारों अलाव तलब इलमो शिरकत कर अत मौके पे तलीम तो हुनरमंदी हवाले कथन दल दिन आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत दूर दराज इलाकन मज रोजन वाले तलब इलमन हिंद बापत यन प्रोग्रामन हुंद संज कर युत जन इन तलब इलमन हिंस सलाहियत बरोई कार अन्न सहित जोन हुनरमंदी कुन फिरनस मज त आसानी सपद। साना पढ़ रहे हैं ड्रामा। आज डिग्री कॉलेज टंगडार में हमने प्रोग्राम मुनक़द किया स्किल डेवलपमेंट। ये इश्तराक हाई फाई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और सुल्तान आरफीन कॉलेज ऑफ IT जो हमने करना में NCPL प्रपोजल NCPL खोला है, इसकी इश्तराक से हुआ है। इस चीज़ के इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि दूर दराज जो उर्दू स्पीकर्स हैं उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़ो, खासकर डिजिटल वर्ल्ड से जोड़ो। आजकल की ये कड़ी है, हमने यहाँ कॉलेज में आके यहाँ कॉलेज स्टाफ ने हमारा काफ़ी सहयोग दिया है कि हमने यहाँ प्रोग्राम मुनक़द किया है, जिस प्रोग्राम से हमने बच्चों तक ये बात पहुँचाई कि डिजिटल वर्ल्ड और स्किल डेवलपमेंट में आज आपका रोल क्या है और आज इस रोल में इसमें आप कूद जाओ और आप ये चीज़ें गेट करो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फ़रोग इसी से मिलेगा कि हमारा बच्चा यहाँ दूर दराज वाला बच्चा जो दूर दराज इलाके से आते उनके लिए हमने यहाँ ये फैसिलिटी कायम की है और इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाएं। कोर्स कितने ड्यूरेशन का है? ये जो सर्टिफिकेशन कोर्स है 1 ईयर के भी हैं, 6 मंथ्स की। खासकर हमारे पास 1 ईयर का प्रोग्राम है जो काफ़ी बेनिफिशियल है, जिससे लोगों का जिससे बच्चों का रोज़गार। नाजरीन खबरनामस में तुम दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। सिटनटबाजी करने वाले नौजवान खिलाफ ये ट्रैफिक पुलिस तरफ मुहिम तेज करने आम तत श्रीनगरस मज दोन नौजवान वीडियो सोशल मीडिया पे मकबूल सपदन पत ट्रैफिक पुलिस तरफ दशवई नौजवान बद कड़ने पत तिहज काउंसलिंग तक आम जन जिम्मेदारों तरफ मालिन माजन तलकीन करना आव तिम गन पन्न बचन सिटनटबाजी करनस हवाले सख्ती बरतन युत जन तिमन खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई ये रोज जो ये वीडियो हमारे सिटीजन्स हमें भेजते हैं जहाँ पर भी कोई स्टंट ड्राइविंग होती है या कोई माइनर गाड़ी चलाता होता है तो हमें वीडियोस मिलते हैं और हम उस पर कार्रवाई करते हैं। इसी कड़ी यही कड़ी है कि कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये 3 बच्चे एक स्कूटर बाइक पर सवार थे और एक उनमें से एक बाइक के पीछे खड़ा था। तो हमारे जो बाशूर सिटीजन्स हैं जिन्होंने ये वीडियो हम तक पहुंचाया तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि इनको थोड़ा सा लाएं यहाँ पर। हमने इनको लाया है यहाँ पर, इनकी काउंसलिंग की है, इनके जो पेरेंट्स है वगैरह उनकी भी काउंसलिंग की है। तो ये अब अपने किए पे शर्मिंदा है। इन्होंने अभी हमें बताया है कि हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। फैक्ट पड़ा है बहुत जो स्टंटबाजी पहले होती थी या माइनर ड्राइविंग राइडिंग होती थी वो कम हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी समझते नहीं हैं इसके नुकसानात कितने हैं। जो ये बच्चों को स्कूटर देते हैं, गाड़ियां चलाने देते हैं, कितने नुकसानात है इसके नुकसानात ना सिर्फ उस बच्चे को है, उनके पेरेंट्स को है और आम जो सड़क पर चलते राह पे चलते हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। तो बेशक हम इसलिए ये अवेयरनेस करते हैं और आपके जरिए लोगों तक बात पहुंचाना चाहते हैं। वबस्त मिड डे मील्स मुलाजिमों तरफ एहजाजी मुजाहिर करना आमुत या दौरान एहजाज में शामिल मुलाजिम इंसाफ फराहम करने मांग करान
एहजाज में शामिल मुलजमों तरफ वन आमद यदि तम पन फरज चुक सान अंजाम दिवान ताहम तिहद मसल अंजरान सवाल कह कदम तुलने यम किन तम सड़कन पर यथ एहजाज कर हमने आपकी टोपी का खास ख्याल रखा है और 6 महीने का जो टाइम आपने दिया है हमारी मांगे मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करो, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करो, पेंडिंग वेजेस वागुजार करो, करंट वेजेस वागुजार करो। उमर साहब जिंदाबाद, उमर साहब। इंडियन कुक्स यहाँ पे जमा हुए हैं इस घर से कि हमारी जो पुरानी तनख्वाह है वो ना तो वागुजार की गई है ना उसमें कोई इजाफा किया गया है। हम फिर से मुश्किल में पड़ गए हैं वो जो पुरानी तनख्वाह की वजह से। और दूसरा हमारा सिर्फ उमर सरकार से 4 ही हमें बातें कहनी है उमर सरकार से। पहला ये कि हमारा जो तनख्वाह है वो वागुजार किया जाए, पुराना भी और करंट भी, इन महीनों का भी। दूसरा हमें उससे ये कहना है उमर सरकार या मौजूदा सरकार से ये कहना है कि हमारी जो ये है जॉब सिक्योरिटी उसमें यानी कि हमारे लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लाई जाए, क्योंकि हमारी जो डीलिंग रहती है वो गैस के साथ रहती है और हम कठिन हालात में पकाते हैं। कम से कम अगर मिनिमम वेज एक्ट हमारे लिए ना लागू किया जाए तो अब भी हम वी आर ऑल स्किल्ड मेंबर्स, बिकॉज जो नरेगा के आम लेबर है उनको दिया जाता है 272। अगर हमें ये नहीं, हम 30 रुपए पे काम करते हैं, क्या करेंगे हम उन 30 रुपए का। दूसरी बात यह है कि मेरा नाम है तरताज अहमद शाह, मैं ऑल डेलीवेजर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारा आज जो मिलने का यहाँ जो हमने एक प्रोटेस्ट किया है, हमने ये इसलिए किया कि उमर सरकार जो हमारी सरकार है जिसने हमें मरकज़ को हमने दिखा के दिया कि हमारी सरकार जो है वो एनसी सरकार है और एनसी सरकार को हमने इसलिए वोट किया है, इसलिए चूज़ किया कि ताकि वो हमारे मसले जो है तमाम डिपार्टमेंट के, इसमें एग्रीकल्चर है, मिड डे मील है, एसपीओज है, लैंड डोनर है, आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्कर है, CPOW है। तो नाजरीन इस वक्त खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।